Okay, welcome back. Today we will cover 5 types of writs in India. And in brief, we will also read Article 32, wherein a writ can be issued by the Honorable Supreme Court of India for the enforcement of fundamental rights. And under Article 2 to 6, the writ can be issued by the Honorable High Court for both fundamental rights as well as the legal rights. Okay, so these are the provisions involved regarding the writs, okay, in our Indian constitution, obviously. But before we start, we should know the meaning of the writ. Okay, so writ is nothing but a kind of a legal order to do or not to do something. So this is very important. A legal order to do or not to do something, and it is given or issued by a court of law, न्यायालय द्वारा जारी वैधानिक आदेश, परमादेश या न्यायादेश को हम रिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि इट इज़ ए काइंड ऑफ ए लीगल ऑर्डर। ये एक लीगल ऑर्डर होता है जो कुछ या तो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए इशू किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? या तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स या एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट, इनके लिए किया जाता है। और इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। In the case of Article 32, it is issued by Honorable Supreme Court of India, and it is issued under Article 2 to 6 for the enforcement of fundamental right as well as legal right by the Honorable High Court of India. Okay, any High Court of India. So this is regarding the first important point or the introductory point of the writ. Now certain other issues which we will discuss throughout the lecture is which is wider, whether Article 32 is wider, means that power or the powers. Obviously we are not talking about the power, we are just talking about the ambit we are talking about. So whether the ambit of Article 32 is greater or the ambit of Article 2 to 6 is greater. So as I have already said that in the case of 32, we used to go to the courts of law, that is the Honorable Supreme Court of India, that is highest court of appeal in our India, for the enforcement of only fundamental rights. ठीक है, but in the case of High Court we can go for both fundamental right as well as the legal rights. So obviously you can better conclude that the horizon or the ambit of Article 2 to 6 is wider than the Article 32. Okay, this point is very much clear. This should be very much clear to you because it often I have seen so many times in the exam. Now we go further and see in the Indian provisions in the Indian constitution. We'll read, अभी पढ़ेंगे उसको, लेकिन before we get into that, read certain important key points. Okay, the first is the Indian constitution empowers the Honorable Supreme Court of India to issue writ for the enforcement of any kind of fundamental right conferred by Part 3rd of the Indian Constitution. Okay, under Article 32. So under Article 32 Part 3rd, अगर आप संविधान देखेंगे तो पार्ट्स हैं, Part 1, Part 2, Part 3। तो उसमें जैसे कि Part 3rd को हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, Part 4 को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, उन्हीं में सब चैप्टर्स हैं। एंड पार्ट, ठीक है, जब हम पढ़ते जाएंगे तो Part 4A में जाएंगे तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो जाएगी, सो एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ें आती जाती हैं। तो Part 3rd स्पेसिफिकली इज अबाउट दी फंडामेंटल राइट, और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से शुरू होता है और आर्टिकल 35 तक ये जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जब कभी हम इन Part 3rd को पढ़ते हैं तो ये इनफैक्ट आर्टिकल 13 में भी ये लिखा है कि इवन स्टेट, ये इट इज़ रिस्ट्रिक्टिव। आर्टिकल 13 का 2 भी हम पढ़ते हैं तो स्टेट भी कोई लॉ बनाकर जो है आपके Part 3rd फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकते हैं, टेक अवे नहीं कर सकते हैं। मीन्स लॉ दे कैन मीन्स व्हाट इज इट इज़ एक्चुअली पुटिंग सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन अपॉन द स्टेट। ठीक है, सो दिस इज in that context I am saying ki these are negative in nature. Okay, similarly whenever there is a violation of fundamental right, means ये जो आर्टिकल हैं, जैसे कि आपने 19 का वायलेशन किया, आर्टिकल 14 का वायलेशन कर दिया, या आर्टिकल 21 का वायलेशन कर दिया। 21 इज़ वेरी वाइडर, आर्टिकल 21 आपको पता ही है, वेरी वाइडर। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें हमें राइट टू प्राइवेसी भी अब उसके अंदर आ गया है, राइट टू स्लीप, राइट टू
हैव ए एम्बियंट एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारा आर्टिकल 21 का इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है, वहाँ से निकलता है सारा कुछ। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये सारे आर्टिकल को अगर कभी भी वायलेशन होता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। और स्पेसिफिकली चूँकि पार्ट 3 बोला गया है तो हमें यही याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, और जिसमें आपके आर्टिकल 32 के अंदर ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेट इशू करते हैं, ठीक है, और ये 32 के रिगार्डिंग है। नाउ दस द पावर टू इशू रिट्स इज प्राइमरली अ प्रोविजन मेड टू मेक अवेलेबल द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू एवरी सिटीजन। ऑब्वियसली इट्स अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन गो टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड इट शुड नॉट बी सस्पेंडेड, नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज वी नो इज अ गारंटर ऑफ ऑल द अदर फंडामेंटल राइट्स एंड अवेलेबल टू दी पीपल ऑफ इंडिया। और यही कारण है हम बोलते हैं हु इज़ प्रोटेक्टर एंड गार्डियन, तो हम बोलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। एंड हम लेकिन कोर्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक वो होना चाहिए प्रोविजन, सो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Please write in the comment box and tell me if it is not clear. I can make another lecture and make it clear the things, or everything you can ask in the comments box. Now moving on to the next part, Article 226, wherein the Honorable High Court of India are also empowered to issue writs for the enforcement of any kind of right. So here you see any kind of right. Okay, now we are doing the critical analysis and conferred by the part 3rd. So part 3rd, that is the fundamental right obviously, and for any other purpose. So this any other purpose will cover the legal rights. So legal rights as well as fundamental right both are covered. You know, when we talk about the legal right, just say for example you have you are going to the people representation of people's act, right to contest election, ठीक है, any right to vote, though you know it is mentioned and under when you read under 326 article 326 and everything, you will find that the voting age is now 18 years and all everything is mentioned, but from where you are driving this right, whether from where, if it is provided by the virtue of statute, अगर वो statute से आपको मिल रहा है कोई right, तो जैसे हम RTI की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो RTI एक्ट 2005 अगर हम देख लेते हैं, जो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, वो सारी क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट्स हैं, ठीक है, वो बाय दी दे आर कमिंग द जेनेसिस इज द स्टैच्यूट, तो वहाँ से हमें पावर मिलता है, ठीक है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑब्वियसली। सो अब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 226 में दोनों कवर हो जाते हैं, लीगल राइट एज वेल एज दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो नाउ वी कंक्लूड दैट आर्टिकल 226 इज द वाइडर वन। ओके, रिट जुरिडिक्शन और द एम्बिट और द हरिजन ऑफ आर्टिकल 226 इज वाइडर दैन दी आर्टिकल 32। ओके, हम इसमें पावर की कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स अगर आप उसे पढ़ेंगे, अभी मैं आर्टिकल जब 226 पढ़ूंगा तो वहाँ लिखा होता है, स्टार्टिंग है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 32, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक सेविंग क्लॉज की तरह भी काम करेगा, वो बाद में बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 32 को थोड़ा सा बेयर प्रोविजन रीड करते हैं। देखिए, रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट का मतलब पार्ट 3 की यहाँ पे बात हो रही है, फंडामेंटल राइट। सो राइट टू मूव टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय एन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट, इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ हैबिस कार्पस मैंडमस प्रोहिबिशन को वारंटो सर्टियोराई, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the right conferred by the part 3rd of the Indian Constitution. So 5 types of writs are there, and we have first habeas corpus, second mandamus, third prohibition, fourth quo warranto, and fifth the certiorari, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 टाइप्स ऑफ रिट। व्हेन वी विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑल्सो, हम इनकी डिटेलिंग भी करेंगे, पर्टिकुलर हर एक रिट की हम डिटेल में आगे एनालिसिस करेंगे। नाउ द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जब तक कि कहीं ये प्रोवाइड नहीं किया गया है, तब तक आप इन राइट्स को आप क्या करके सस्पेंड भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के बारे में अब देखेंगे। द पावर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। सो नॉट विद स्टैंडिंग, मैंने पहले ही बोला था, ये ओवर राइडिंग इफेक्ट दे रहा है। ओवर राइडिंग इफेक्ट मतलब ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन, ये एक सेविंग क्लॉज कह लीजिए, मतलब ये यही कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, 32 में जो भी बात लिखी है उससे हट के, मतलब उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा इस 226 के अंदर। एवरी हाई कोर्ट
मतलब ये नहीं कि अगर वहाँ पे रिट इशू हो गई तो यहाँ पे आप मतलब योर राइट इन अंडर आर्टिकल 2 to 6 इज अफेक्टेड. सो इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड दैट notwithstanding anything contained in Article 32, every High Court shall have power throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction to issue any person. देखिए any person लिखा है. So any person obviously can you please understand the word any person. Had they mentioned here the citizen, so it would have been possible for only the citizens of India to go to the courts of law for the enforcement of the fundamental right as well as the legal right. मतलब अगर ये यहाँ पर सिटीजन लिखते बट ये मेंशन किया है एनी पर्सन. सो एनी पर्सन विल इंक्लूड द सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन. ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इस पर. अब देखिए और अथॉरिटी, ठीक है, टू इशू, फिर से देख लेते हैं, थ्रू आउट द टेरिटरी इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइजेज जुरिडिक्शन टू इशू टू एनी पर्सन. किसी भी पर्सन को इशू कर सकते हैं. मतलब इवन नॉन सिटीजन पर्सन भी कैन गो टू द कोर्ट्स फॉर द इशूएंस ऑफ सच ऑफ द राइट्स. ओके. और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द अप्रोप्रिएट केसेस एनी गवर्नमेंट विद इन दोज. जो इंटरप्रिटेशन है मैं वो बता रहा हूँ. मैं आई एम टेलिंग यू द एनी पर्सन का इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया. अगर यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा होता टू इशू टू द सिटीजन, एनी सिटीजन लिखा होता तो स्पेसिफिकली हम सिटीजन की बात करते. लेकिन चूंकि यहाँ पे एनी पर्सन लिखा है तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इट विल इंक्लूड बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन. हम इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ. अब यहाँ पर including in appropriate cases any government within those territories, directions, order or writ, including the writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, or any of them for the enforcement of the right conferred by part 3rd for any other purpose. The power conferred by the clause 1 to issue the direction, order or writ to any government authority or person may also be exercised by the High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action, ये आपको याद रखना होगा, wholly or in part arises for the exercise of such power, notwithstanding that such seat of such government or authority or residence of such person is not within those territories. चाहे उन टेरिटरी में इनकी सीट हो ना हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी का ना हो, लेकिन कोई भी हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं रेट्स, प्रोवाइडेड उस टेरिटरी के अंदर जो है आपका कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए. कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब आप ऐसे समझिए कि आपका कोई राइट था, यू हैव ए लीगल राइट एंड दैट हैज़ बीन वायलेटेड, सो द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज. ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज होता है? जब आपको कोई राइट दिया गया और वो वायलेट हो जाए. ठीक है. सो ऑब्वियसली पार्ट 3rd में अगर आपको वोट दिया गया है कि यू कैन जैसे अगर आपको वोटिंग राइट मान लीजिए अगर आप बात कर लेते हैं, या आपको कोई भी दूसरा आर्टिकल 19 के अंदर ट्रेड का राइट है, ये सारे राइट्स हैं, ये इस पे आपको कुछ मतलब आप काम कर रहे हैं, राइट टू मूव हियर एंड देयर, बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल्सो. इन सभी केसेस के अंदर आप रिट में यू कैन गो टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ, इवन बोथ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट. सो दिस पार्ट इज रिगार्डिंग दी बेयर प्रोविजन. अब हम जो है एग्जैक्टली जो मेन एजेंडा है हमारा 5 टाइप ऑफ रिट्स का, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आपको थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए. अब हम बात करेंगे 5 तरह की रिट्स के बारे में. सो टाइप्स ऑफ रिट्स की बात करेंगे तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स. सी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स: हैबेस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो. तो पहली बात करेंगे हम हैबेस कार्पस की. इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, मतलब to release a person who has been detained unlawfully whether in prison or by in a private custody. मतलब कोई व्यक्ति चाहे वो पुलिस अथॉरिटी के उनमें अरेस्ट हो या वो किसी प्राइवेट कस्टडी में हो तो that person has to be it is a duty of that person who actually have arrested to bring the body of that person before the court. ठीक है. तो हैबेस कार्पस जब इशू हो जाता है तो ये करना होता है. ठीक है. तो हैबेस कार्पस इज ए लैटिन टर्म विच लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी. द रिट इज इशूड टू प्रोड्यूस ए पर्सन हु हैज़ बिन डिटेन, जिन्हें आपने अरेस्ट किया है. डिटेन मतलब अरेस्ट किया है. ठीक है. वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी, चाहे आपने प्रिजन या प्राइवेट कस्टडी में किया है. प्राइवेट कस्टडी का मतलब इवन जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप पढ़ेंगे शायद 40, 41, 42 एंड 43 पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि इन द वेर ए प्राइवेट पर्सन कैन इवन अरेस्ट ए पर्सन, तो वो भी अरेस्ट कर सकते हैं. बट एज सून एज यू अरेस्ट यू हैव टू हैंड ओवर दैट पर्सन आफ्टर अप्रीहेंडिंग, you have to hand over that person to the police. तो police they are talking about both whether detained
इन प्रिजन और इन ए प्राइवेट कस्टडी। ओके, सो क्या करना होगा, वेदर इन प्रिजन और इन ए प्राइवेट कस्टडी, सो बिफोर द कोर्ट के सामने आपको उन्हें लेके आना है एंड टू रिलीज हिम इफ सच डिटेंशन इज फाउंड इलीगल। तो कोर्ट को पावर दे दी गई है कि जैसे ही रिट इशू होगी तो आपको पहली बात तो रीज़न देना पड़ेगा जिन्होंने अरेस्ट किया है कि क्यों अरेस्ट किया है, और आपको ये रेट इशू हो गई तो अगर उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा तो इन दैट केस यू विल बी एंड इफ इट इज़ फाउंड इलीगल देन यू दैट पर्सन विल बी रिलीज्ड। तो ये तो इट वाज रिगार्डिंग दी हैबियस कॉर्पस। इसको बुलवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम्स में, पीटीज में भी मिलेगा आपको। दिस इज कॉल्ड द बुलवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इसमें आपका रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। रेस जुडिकाटा का मैं थोड़ा सा एंटर कर गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी मैं बताना चाहूँगा एक पासिंग रिमार्क में कि रेस जुडिकाटा का मतलब आप जैसे एक बार कोई चीज़ डिसाइड हो गई तो आप क्या उसमें सिविल मैटर्स में क्या होता है कि कोई मैटर इफ़ इट इज़ फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड देन यू कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉर द सेम फैक्ट्स एंड द सेम इशू, नहीं आप जाते हैं उस इन चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पर हैबियस कॉर्पस के केस में क्या हो रहा है, आप बार बार आप चाहें तो अपना हैबियस कॉर्पस रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा यहाँ पे नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई हैव एडेड इट, इट माइट कम इन योर एग्जाम। और वैसे भी यूपी के एग्जाम में, यूपी एंड एमपी के इवन जुडिशियल एग्जाम्स में आई हैव सीन दिस पार्ट। ओके, दिस क्वेश्चन केम एक्चुअली। नाउ द मैंडेमस मतलब वी कमांड, ओके, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट, अ ट्रिब्यूनल और ए पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंडेमस इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स वी कमांड। मैंडेमस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ये लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर दिया जाता है और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म ए पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ठीक है, कोई पब्लिक ड्यूटी या स्टैट्यूटरी ड्यूटी आप परफॉर्म करें, इसकी डायरेक्शन आपको दी जाती है, एक ऑर्डर के रूप में दिया जाता है। एंड दिस रिट इज कमांड, दिस रिट ऑफ कमांड इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन एनी गवर्नमेंट कोर्ट और कॉर्पोरेशन और एनी पब्लिक अथॉरिटी हैज़ टू डू ए पब्लिक ड्यूटी बट फेल्स टू डू सो। ठीक है, यानी कोई पब्लिक अथॉरिटी की कोई ड्यूटी थी, कोई लीगल ड्यूटी थी एंड दे एक्चुअली नॉट परफॉर्मिंग, सो यू व्हाट यू कैन डू, यू हैव एन ऑप्शन टू गो टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉर द इशुएंस ऑफ द रिट ऑफ मैंडेमस to secure the performance of that public duty by the lower court or tribunal or the public authority. So I think this part is also clear to you. Okay, now going to the third part, that is the certiorari. Now that means to be certified, to quash the order already passed by an inferior court, tribunal or quasi judicial authority। मतलब कोई ऑर्डर पास किया गया है बाय द inferior courts, be it tribunal और quasi judicial authority, तो उसे सर्टिफाई करना, टू क्वैश करना, उसे ख़त्म कर देना। तो certiorari मीन्स टू बी सर्टिफाइड। देखिए, a writ of certiorari can be issued by Honorable Supreme Court or Honorable High Court of India for the quashing the order already passed by an inferior court, tribunal or quasi judicial authority. So there are several conditions necessary. कुछ conditions necessary होते हैं for the issue of the writ of certiorari. So there should be there should be court, tribunal or any there should be court, tribunal or any officer having legal duty to determine the question with a duty to act judicially. duty to act judicially पहली चीज़ हो गई कि duty to act judicially होना चाहिए। ठीक है, and such a court, tribunal or officer must have passed an order acting without jurisdiction or in excess of judicial authority vested by law in such court, tribunal, officer। या तो उन्होंने अपनी जुडिक्शन के एक्सेस किया है जो उनमें, या उनमें वेस्ट नहीं थी वो पावर, तो उन्होंने उसको एक्सेस किया है। ठीक है, और ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और तीसरी बात ये है कि ऑर्डर कुड बी ऑल्सो बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे कि ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, हियरिंग इज नॉट गिवन, रीजनड ऑर्डर वाज नॉट देयर, दीज आर काइंड ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, and the order could contain an error of judgment in appreciating the facts of the case, maybe appraisal of the facts was not done properly. So these are the certain conditions which we have to look upon when we decide the writ of certiorari. Okay, our courts, that is Honorable Supreme Court and Honorable High Court of India. Now fourth writ is the writ of prohibition. So to prohibit an inferior court from continuing the proceeding in a particular case where it has no jurisdiction to try. See, prohibition when the court is not having any jurisdiction to try, and though still you can say the court is actually exercising the jurisdiction. So in that case, a writ of prohibition means to forbid, to stop, rokna,
इट इज़ अ पॉपुलरली नोन एज द स्टे ऑर्डर। आपने सुना होगा स्टे ले लिया, स्टे ले लिया, तो स्टे ऑर्डर। एंड दिस रिट इज इशूड व्हेन a lower court or a body tries to transgress the limit or the power vested in it. The writ of prohibition is issued by the any high court or honorable supreme court of India to any inferior court को, ठीक है, और quasi judicial body prohibiting the latter from continuing the proceeding in a particular case where it has no jurisdiction to try after the issue of the writ. This writ, the proceeding in the lower court etc comes to a stop. तो ये भी क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरल। इसमें कुछ डिफरेंस है। देखिए, द रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिट कर रहे हैं तो पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग के टाइम पे होता है, जबकि रेट ऑफ सर्टियोरल जो होता है कैन बी रिजॉर्टेड टू ओनली आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द डिसीजन हैज़ बीन अनाउंस। तो ये जब अनाउंस कर दिए गए। ये प्रोहिबिशन में क्या है, जब कंटिन्यूटी है या पेंडेंसी चल रही है, और जब पास कर दिया जाता है सर्टियोरल में, ऑब्वियसली पास कर दिया गया है रिजॉर्टेड ओनली आफ्टर द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, तो ये उसके बाद होता है, ठीक है। both the writ to and common thing is that both the writs are issued against the legal bodies। ये भी आपको पता होनी चाहिए, against the legal bodies, right? Please mind it, legal bodies, okay? Now quo warranto, what is your authority? What is your authority? Okay, so to restrain a person from holding a public office which he is not entitled, means by what authority you are holding this position, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब का मान लीजिए टेनर ख़त्म हो जाता है, या फिर कोई भी किसी भी हम पब्लिक ऑफिस की बात करें, अगर उनका टेनर जब ख़त्म हो जाता है एंड स्टिल दे इफ़ दे आर होल्डिंग द ऑफिस एंड नॉट वैकेटिंग इट, so this writ can be issued even in any government office. I must say that if somebody is not vacating the position which he is not legally entitled to possess, or hold, which he is not legally entitled to hold, so in such cases the quo warranto can be issued by the courts, okay? So the word quo warranto literally means by what warrants, means by what authority actually, and what is your authority. So it is a writ issued with a view to restrain a person from holding a public office to which he is not entitled, वो entitled नहीं है। The writ requires the concerned person to explain to the court by what authority he holds the office. If a person has usurped a public office, the court may direct him not to carry out any activity in office or may announce the office to be vacant. Thus the High Court may issue a writ of quo warranto if a person holds an office beyond his retirement age। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब कंडीशन फॉर इशू ऑफ द quo warranto, ऑफिस मस्ट बी पब्लिक होना चाहिए, इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट ऑब्वियसली, और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट वगैरह की हमने बात करी अभी itself, ठीक है। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटैंटिव one and not merely the function of employment of a servant at the will and during the pleasure of another, ये भी होना चाहिए, pleasure of another, ठीक है। and there must have been a contravention of the constitution or a statute or statutory instrument in appointing such person to that office, okay? So these are the certain conditions which we have to see while the issuance of the quo warranto by our courts, okay? So now we will solve the multiple choice questions quickly. We will see some multiple choice question. The very first is, which of the following writ is said to be the guarantor of the personal freedom? So ऑब्वियसली गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम की बात हो रही है, तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट एंड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जो है आप तुरंत जा सकते हैं, और अगर ये इशू हो जाती है तो जो अरेस्ट कर रहा है जिन्होंने, तो दैट पर्सन हैज़ टू ब्रिंग दैट अरेस्टेड पर्सन और द अरेस्टी यू कैन से अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट के सामने लेके जाना है। तो ये पर्सनल फ्रीडम से जुड़ा है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा पर्सनल फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आप इशू करवाएंगे आपका पर्सनल फ्रीडम की भी अगर हम बात करें, अगर आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेरी लिबर्टी है कि मैं खुले में घूमूँ, और अगर कोई आपको अरेस्ट कर लेता है तो आप चाहें, अगर आपको लगता है इलीगल ग्राउंड्स हैं, तो आप हैबियस कॉर्पस के थ्रू वहाँ पे कोर्ट्स में आप जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैबियस कॉर्पस, ओके, गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन बिलीव टू बी बाइंडिंग ए पब्लिक ऑफिस ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड? तो ऑब्वियसली स्टेट वे अब तो थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया है, तो वी कैन मार्क दी quo warranto, दैट इज बी ऑप्शन। Now the third we talk about, the power to issue writ has been envisaged
ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, पावर टू इशू. सो वी हैव ऑलरेडी डन इन द वेरी स्टार्टिंग दैट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, so you can mark that option number C. Next we go, which of the following writ can be issued to force a public authority to perform a public or statutory duty. So obviously we have done, that is the mandamus. And fifth one, here we have the match the following. See, we command by what authority. So by what authority तो obviously force से आप जोड़ेंगे, that is quo warranto से. To be certified आप certiorari से जोड़ेंगे. Habeas corpus you may have bring the body, and mandamus we command. तो अगर करेक्ट ऑर्डर से देखेंगे तो फर्स्ट को आप किससे लिंक करेंगे, सी के साथ. सेकंड को आप फर्स्ट को देखिए सी के साथ लिंक करेंगे, तो ये आ गया आपका थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है. मैंडमस को हम करेंगे ए के साथ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मैंडमस को यानी सेकंड का ए का हो गया. सर्टियोराई को हम डी के साथ करेंगे, यानी थर्ड को डी के साथ, बिल्कुल ठीक है. एंड फोर्थ को वी विल मार्क विद दी, that is the B option. What is your authority? So with this what we have concluded the option number 4th, that is the 1C 2A 3D 4B. तो ये यहाँ पर हमने is a mark here, that is answer number D is the correct answer. So with this we have completed the 5 types of writ. I think every point regarding this topic is cleared, and you can mention in the comment box and tell me whether it was fruitful or not. Thank you for listening. Take care. All the best.